ऐलान कर दिता है की लगता कांग्रेस दे विच जाल फूकी पंजाब के लोगों ने नहीं ऐलान किया तो कांग्रेस ने किया। यार एक मिनट चुप कराई, कौन बोल रहा है? ओए फिर दो जगह ना लड़दा जे इन्ना डर ना हुंदा। हां पब्लिक ओपीनियन लिता जी वो कहते सी ਅਸੀਂ पब्लिक ओपीनियन लिता राहुल गांधी देयर इज नो पब्लिक ओपीनियन। मैनू कांग्रेस 50 साल हो गए से, दसो एक बार भी कदे कांग्रेस का पब्लिक ओपीनियन लेता है? वो तो दिल्ली बह के ऑफिस से सब फैसला होता है। माइक नहीं चल रहा। चन्नी ਦੇ 1.5 ਘੰਟਾ ਅੰਦਰ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨਾਲ। ਸਿੱਧੂ ਇੰਟਰਸਟਡ ਸੀਗੇ ਸੀਐਮ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਅਗਲਾ ਕੀ ਕਦਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੀ? ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਨਾ? ਥੋੜੀ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਟਿਕਿਆ ਕਿ ਟਿਕਦਾ? ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲੈਣਾ 2-4 ਦਿਨ ਚ ਕੀ ਹੋਣਾ। ਕੋਈ ਸਿੱਧੂ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਕਦੇ ਸਾਇਲੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਹਾਈਲੀ ਐਂਬੀਸ਼ੀਅਸ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਪਨ, ਉਹ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਰਦਾ ਹੀ ਰਹੂ। ਦੱਸੋ ਕੌਣ ਜੀ? ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਇਹ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਸਲਾ। ਮੈਂ ਕਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੀਤਪਾਲ ਕੋਹਲੀ ਦਾ ਭਰਾ ਨਾਲ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ? मेरे पार्टी का मसला वो उधर पार्टी वाला अजीत पाल हॉकी वाले नहीं गुरजीत सिंह कोहली जी ਜਿਹੜੇ ਸਪੋਰਟ ਚ ਨੇ ਗੁਰਜੀਤ ਅਜੀਤ ਦੇ ਉਹਦਾ ਛੋਟਾ ਬ੍ਰਦਰ ਬੀਜੇਪੀ ਜਾਈ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੁਣੀ ਧੰਨਵਾਦ। आई डोंट नो ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਮੋਦੀ ਤੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਕਦੋਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ? प्राइम मिनिस्टर शायद वर्चुअली करन पर हाले डेट्स नहीं आईਆਂ। अमित शाह जी आउणगे और पटियाला भी आउणगे। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ 2017 ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਈ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਪਈ। ਇਸ ਵਾਰ ਕੈਪਟਨ ਦਾ ਜਾਦੂ ਚੱਲੇਗਾ ਜਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਪੀਐਲਸੀ ਤੇ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਦਾ ਹੋਰ ਜਾਦੂ ਚੱਲੇਗਾ? ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਲਓ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਮੈਂ कैसे जवाब देवां? सब तो मिलके चलेगा। ਸਰ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਣਾ ਸੀ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬੜਾ ਕੁਝ ਦੇ ਕੇ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਚਲੋ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੇ ਕੇ ਜਾ ਪਾਏ। ਇਸ ਵਾਰ 43,000 करोड़ नहीं। अगर कोड ऑफ कंडक्ट ना होंदी तो प्रधानमंत्री जी जरूर दे के जाते, बट वो मौका असी खो बैठे हैं बठिंडे वाला। उस दिन 43,000 करोड़ की अनाउंसमेंट करनी सी पंजाब वास्ते, जिहड़ा इन्होंने गड़बड़ कराती उत्थे चन्नी चूनी ने। कोई भी नहीं कर सकता कोड ऑफ कंडक्ट। ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਜੀ ਕੱਲ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ 4.5 ਦਿਨ ਹੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਪਟਿਆਲੇ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਕੇ ਵੋਟ ਪਾਇਓ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਹਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਓਗੇ? चलो ਤੁਹਾਡੇ ਏਰੀਆ ਚ ਆ ਕੇ कोई गल नहीं कह दो। ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਪਰਫੈਕਟ ਸੀ ਤੇ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਉਹਨੂੰ ਕੌਣ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਲੜ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਕਿਸ ਨੂੰ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਿਤਾਇਆ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਔਰ ਮੈਂ ਜਿਤਾਇਆ ਉਸ ਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਤੋਂ। ਉਹ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਣ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਉੱਥੇ ਦਾ ਸਾਡਾ ਨੋਮੀਨੀ। ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਖੜਾ ਹੋ, ਇਹਨੂੰ ਜਿਤਾਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲੀਡਰ ਆਫ ਦੀ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ। ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇਨਕੁਆਇਰੀਆਂ ਖੁਲਵਾਈਆਂ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪਿੱਠ ਤੇ ਛੁਰਾ ਮਾਰਿਆ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਛੁਰਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਫੇਸ ਟੂ ਫੇਸ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਫੇਸ ਫੂਸ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਇਹਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਾਣਦਾ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਫੇਸ ਟੂ ਫੇਸ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਰੇ ਨਾ। ਇਨਕੁਆਇਰੀਆਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਸਰ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਵਾਈ ਸੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਹੋਰਾਂ ਦੀ। ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਤੇ 4.5 ਸਾਲ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਨਕੁਆਇਰੀਆਂ ਕਰਵਾਈਆਂ। ਕਿਸ ਗੱਲ ਤੇ ਇਨਕੁਆਇਰੀ? ਉਹੀ ਉਹਨੂੰ ਸੁਪਨਾ ਆਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਾਈ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ ਨੂੰ ਬੜਾਵਾ ਦਿੱਤਾ, ਚੰਨੀ ਦਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ? ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ ਨੂੰ ਬੜਾਵਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਲੈਂਡ ਮਾਫੀਆ सारी दुनिया को तो पता है, बट दिस मैटर इज़ अंडर इन्वेस्टिगेशन। हूँ जाता है इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं होंगी, हूँ तो ईडी कर रही है। अब असी कैसे कमेंट कर सकते ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪਟਿਆਲੇ ਦਾ ਜੰਮਣ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ, ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਪਟਿਆਲੇ ਦੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਇਸ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ। कौन कहना? ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ सुखबीर बादल इतने कैसे जमे? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਜਿੰਦਰਾ ਚ ਕਿਹਾ ਜੀ, ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਰਜਿੰਦਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਪਟਿਆਲੇ ਦਾ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਮੇਰੀ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਪਟਿਆਲਾ ਹੈ ਜੀ। मेरा ख्याल कन्फ्यूज हो गया थोड़ा, उन्होंने पता नहीं। ਮਹਾਰਾਣੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ मेरी मदद करेंगे या नहीं उन्होंने पूछ लो। ਓਕੇ ਜੀ, ਓਕੇ ਡਨ। हाँ ਤੁਹਾਡੇ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਨੇ ਕਿ ਪੀਐਲਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ आस कर ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋ। ਦੇਖੋ ਜਿਸ ਦਿਨ 1980 ਚ ਮੈਂ MP ਬਣਿਆ ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ, ਮੈਂ
कांग्रेस MP सी और थोनों पता है मेरे मदर दूजे पासे BJP ਦੇ MP से ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ पॉलिटिक्स ਹੁੰਦੀ है नहीं बनता। एक समय आऊगा अगर असी किसी सेंटर की हुकूमत के नाल भाई बन के नहीं चलांगे तो पंजाब को तनख्वाह देने जोगे पैसे नहीं होने। इस करके बहुत जरूरी सी और मैं गया सी साडे अमित शाह जी नूं मिलन और मैं उन्होंने कहा सी कि असी ये अपनी पार्टी बना रहे हैं और मैं आस करदा कि तुसी इस दे नाल राजी होंगे कि असी सारे तुसी और असी रल के इस पार्टी नूं अगे बढ़ाइए और अपने इलैक्शन दे विच लैके चलीए। ते मैनू उन्होंने कहा कि तुसी बेटा गल है अपने को सिर्फ रह गए 15 मिनट नहीं है इलैक्शन कमीशन वाले आके रौला पाउण लग जाएंगे। आप जरा थोड़ी जी अगे गल बढ़ाइए। तो मैंने उन्होंने कहा कि तुसी और असी चलांगे इकट्ठे ढींसा साहब नाल पहला साडी गल हो चुकी है और तुसी हुण इस गल ते बिल्कुल तैयार हो कि तिन्हां दा साडा गठजोड़ है। मैं कहा बिल्कुल तैयार है। कहते मैं प्राइम मिनिस्टर को कहना मैं कह दो अच्छा प्राइम मिनिस्टर साहब तो 11 बजे टेलीफोन करो सवेरे ये शाम की गल सी। तो मैं सुता पिया सी 6 बजे और उतों मिनिस्टर का टेलीफोन आया कि प्राइम मिनिस्टर नाल गल हो गई। मैं कहा नहीं हाल तुम 11 बजे कहा हाल तो 6 बजे ने सवेर से। तो कह रहे नहीं अभी करो आपका इंतजार कर रहे हैं। इन्नी मोदी साहब और मैं असी चीफ मिनिस्टर इकट्ठे रहे पिछली बार वो गुजरात से से मैं पंजाब का सी। बहुत सारी मुलाकात होंगे रही दिल्ली में बड़ा प्यार साडा जुड़े तां ही रौला पाई जाते हैं सारे कि जी मोदी दे नाल जी मोदी दे नाल। भाई सियासत विच कदे कोई दुश्मन नहीं हुंदा अपनी अपनी सोच होंदी है। सोच हो सकती है बीजेपी की अपनी सोच है कांग्रेस की अपनी सोच है कॉम्युनिस्टां की अपनी सोच है होरां दी अपनी सोच है अकाली दल की अपनी सोच है। लेकिन एक बार मैनूं याद है मैं अज दस रहा सी किसी नूं 1980 मैं उत्थों पटियाले तो मैंबर पार्लीमेंट गया बन के और उदों वाजपेयी जी जदों भी बोलण जाते से वो मन्ने हुए एक बुलारे से बहुत ही नंबर एक दर्जे के ते सारा सेंट्रल हॉल खाली होकर अंदर चला जाता से सुनने उन्होंने स्पीच। ये होंदा सी एक जमाना हूँ तो सारे एक दूजे नाल लड़ाइयाँ करी जाते हैं वो कोई सोचता ही नहीं ना देश का सोचता है ना पंजाब का सोचता है कोई नहीं। आ देखा है कांग्रेस ने किस किस्म का माहौल खोलिया इतने जिस दिन मैं गया उस तो बाद 4 टोलियां हो गया कोई इधर खिंचे कोई उधर खिंचे कोई ऐ सरकार नहीं चल दिया। सरकार चल नहीं पाओगी थोड़ा सोच के थोड़ी अपने नक्शे थोड़ा बनाने पैणगे अपने दिमाग के विच और अपने दफ्तरां दे विच और फिर थोड़ा सेंटर की गवर्नमेंट के नाल गल करनी पऊ। अगर असी अज गवर्नमेंट सेंटर की गवर्नमेंट नहीं कर सकते तो मैनूं दसो कि एक गल याद रखो कि आपां बॉर्डर स्टेट है और साडे नाल इधर पाकिस्तान बैठा है बस और पठानकोट तो लैके फाजिलका 600 किलोमीटर मेरी उत्ते जगह है। अजकल पहला की करते से नदी के उपर आ जाते से या तार के थले दे आ जाते से हुण ड्रोन के राही आउण लग गए। हुण की कर रहे हैं बड़ा रौला पिया सी पिछे जे कि अमरिंदर सिंह ने कहता कि जी ड्रोन जी 51 किलोमीटर है ये होना चाहिए। मैं दसा क्यों क्या सी और ये मैनूं हैरानी है कि ना पंजाब का होम मिनिस्टर सुखजिंदर रंधावा ना चीफ मिनिस्टर चन्नी इन्होंने कोई समझ नहीं कि कारण की है। कारण ये है कि पहला जिथे नदी जाती सी या बॉर्डर जाता सी 5 तो 7 किलोमीटर तक एक बॉर्डर एक जोन सी सिक्योरिटी जोन सी जिहदे विच सिक्योरिटी फोर्सेस ऑपरेट कर सकते सी। ठीक है जुलाई के महीने 2 सानू ड्रोन मिले
जो बॉर्डर तो 31 किलोमीटर अंदर हिंदुस्तान के पहुंचे हुए से पंजाब के विच। हुण अगर वो 5 किलोमीटर या 7 किलोमीटर का बॉर्डर रख दे तो फिर आ जो 31 किलोमीटर विच कौन उस उत्थे जाके उत्थे पड़ताल करूँ कि कित्थों आए ने, जोन की है उहदे विच, की हैंड ग्रेनेड ने, किन्ने पिस्टल्स ने, किन्ने उत्थे हथियार ने, AK-47 ने, तुहानूं पता है कितना आया है इत्थे असला? मैं दसा तुहानूं मेरे 4.5 साल और खास करके पिछले मार्च तो जब तो ये अपने ड्रोन चलने लगे ने, 1000 के करीब राइफल्स, 500 के करीब पिस्टल्स, 1 लाख तो ऊपर राउंड एमिनिशन ने, हैंड ग्रेनेड ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਆਸਟਰੀਅਨ ਕੰਪਨੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ IED ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ RDX ਐਕਸਪਲੋਸਿਵਸ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਨੇ, ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕੌਣ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਸੋਚ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ कि असी अपनी हिफाजत अपने देश की, अपने पंजाब की आप रखिए। और वो वास्ते 51 की थोनू पता है जो अमेरिकन फोर्सिस अफगानिस्तान के उन्होंने वो यूज करते से अपने ड्रोन्स, वो सी वैपनाइज ड्रोन्स, हथियार वाले ड्रोन्स, ने चक्कर वाले ड्रोन्स। लेकिन मैं उन्होंने तुहानू दस रहा वो अमेरिकन सेंट्रल कमांड के अधीन चलता सी, और वो कमांड कितने रहिंदी सी? टैंपा फ्लोरिडा दे विच उन्होंने हैडक्वार्टर्स उत्थे, और उत्थों वो ड्रोन्स नूं चलाउंदे से अफगानिस्तान दे विच बडगाम बेस दे विच 8000 किलोमीटर दूर तो वो कंट्रोल करते थे। तो की है 51 किलोमीटर, पता नहीं कि पाकिस्तान की सोच है कि हुणे चीन के नाल रल गए, उधरले पासे हूँ तालिबान नाल भी रल जाएंगे जड़ा हो रहा है इधर अफगानिस्तान के। तो सानू अपनी हिफाजत रखनी पड़ू। और जेडे ये मुख्यमंत्री और ये होम मिनिस्टर, इन्हों पता नहीं जरा थोड़ा बहुत जाके समझ लो, साडी कोऑपरेशन सेंट्रल हुकूमतां दे नाल चलदी रहिंदियां ने, साडी सिक्योरिटी फोर्सिस करदियां, पंजाब पुलिस, IB, NIA, ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਇੱਥੇ ਉੱਥੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੈਂਟਰਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀਆਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਕੌਨਸਟੈਂਟਲੀ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵਿਗੜਨ ਨਾ ਦਈਏ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਿਗੜਨ ਨਾ ਦਈਏ, ਖਰਾਬ ਨਾ ਕਰਨ ਦਈਏ। ਬਹੁਤ ਖੂਨ ਖਰਾਬਾ ਪੰਜਾਬ ਜੁੜ ਗਿਆ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਫਿਰ ਕਿ ਕਦੇ ਕੁਛ ਹੋਏ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਭੇਜ ਰਹੇ ਨੇ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਹ ਮਖੌਲ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਭੇਜਦਾ, ਇਹ ਭੇਜਦੇ ਨੇ ਵਿਦ ਸਮ ਪਰਪਸ। ਉਹ ਪਰਪਸ ਕੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ तक परपस पता नहीं लगता उदों तक साड़ी हिफाजत होनी चाहिए, चाहे 51 किलोमीटर हो या 200 किलोमीटर हो। अज जोड़े ड्रोन बन रहे हैं, थोड़ा ख्याल आही ड्रोन रहेंगे, नवी टेक्नोलॉजी आ रही है, नवी उन्होंने इंड्योरेंस बढ़ेगी, ज़्यादा देर दूर जा सकते हैं, इन्हों के कैरिंग कैपेसिटी जिन्नी तुसीं उन्होंने चक सकते हैं लोड वो बढ़ूगी। हो सकता है कि किसी दिन 400 किलोमीटर जान या 600 किलोमीटर जान, की पता है। लेकिन आपां नूं हुण तो इस वास्ते तैयारी करनी पेगी। और यही मैं शुरू की सी उदों कि असी ड्रोन का ਇਹਦਾ कुछ इस्तेमाल ये करिए। बहुत असीं पकड़ चुके हैं ड्रोन, ये मैं तुहानूं दस्सिया जिहड़ा असला वगैरह चक के गए ने, मैं तुहानूं इस तरह दस्सिया। और हुण गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ड्यूटी बनती है कि ड्रोन्स नूं कंट्रोल करन ताकि इस करनी, और कर रहे हैं इस वाले वेले हुण नवी कुछ एंटी ड्रोन वैपन्स तैयार हो रहे हैं और वो इस्तेमाल होंगे जिहदे नाल इन्हां दा कंट्रोल किया जाए। सो ये गल्लां मैं इसलिए दस रहा कि जदों गवर्नमेंट्स आउंदियां ने, चन्नी दी होवे, सिद्धू दी होवे, जिहदी मर्जी होवे, तुहानूं अपने देश की और अपने हुकूमत की और खास करके पंजाब जिहड़ा साडा बॉर्डर बेल्ट है, ਇਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ उस सरकार की होंदी है। और तुहानूं देखना पऊ कि जदों ये गल्लां हुंदियां ने, ऐसे नहीं तुसीं जाके बयान दे सकते गैर जिम्मेवारी बयान कि 7 किलोमीटर की जगह 50 करता जी, वो सरकार सेंटर भी सामने गई है। तुहानूं इन्हां नूं पता नहीं कि जब उत्थे गड़बड़ हो रही सी पंजाब दे विच, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स और CRP नूं छड्ड के सारी हिंदुस्तान की फौज पंजाब बैठी सी, लेकिन गवर्नमेंट चलदी सी साडी। इट वॉज अ सिविलियन गवर्नमेंट। पहला कदे गवर्नर रूल लिया, गवर्नर रूल तो बाद बरनाला सरकार आ गई, बरनाला सरकार तो बाद सरदार बयान सिंह की सरकार आ गई। तो सरकारां तो चलदियां रहिंदियां ने, सिक्योरिटी भी नाल दी नाल।
ਸੋ ਇਹ ਕੰਟਰੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਹੱਥ ਹੁੰਦਾ। ਕੋਈ ਇੱਕ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੈਸੇ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੈ, ਇਹ ਲੋਕ ਰਾਜ ਹੈ, ਇਹ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪਾਸੇ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੀਏ। ਅੱਜ ਨਸ਼ੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ? ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ। ਅੱਜ ਆਉਂਦੇ ਕਿੱਥੋਂ ਨੇ? ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ? ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਇਨਗ੍ਰੈਸ ਅੱਜ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਊੜੀ ਹੈ। ਊੜੀ ਜਿੱਥੇ 1948 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਫੌਜ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵਿੱਚ। ਚੰਬਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਾਂਡਲਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕੰਸਾਈਨਮੈਂਟ ਅਸੀਂ ਫੜੀ 700 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੇਨ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਕਿਸ਼ਤੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਈ ਉੱਥੇ ਕਾਂਡਲਾ ਪੋਰਟ ਤੋਂ, ਉੱਥੋਂ ਬਾਈ ਟ੍ਰੇਨ ਅਸੀਂ ਪਕੜੀ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਕੌਣ ਕਰੂਗਾ? ਗਵਰਨਮੈਂਟ। और अगर गवर्नमेंट जिम्मेवारी इस काम च लगी रहती है कि तुसी एक आपस लड़ी जाओ, जैसे सुखजिंदर रंधावा चन्नी ना लड़ रहा, चन्नी सिद्धू ना लड़ रहा, सिद्धू किसी होर ना लड़ रहा है, कैसे गवर्नमेंट चलूगी? इस करके जिम्मेवारी नाल सानू चलना पड़ेगा।